today, of course, we have a great topic on how to pick stock through fundamentals. Of course, we'll be dividing the webinar into two halves. The first half will be discussing about market kya lagta hai and everything on market, and of course, I'll be introducing the speaker as well, who will be sharing great insights today on fundamentals. And in the second half, of course, Soumya Malani will be giving his insights. He'll be giving a lot of data. He'll be sharing a lot of case studies as well with all of us to definitely enrich your knowledge on fundamentals and how you can pick long-term picks to through fundamentals. Okay. So Soumya bhai, are you ready? Are you there? I'll just unmute you. Okay. Yeah, Yash, I am here. Glad to be part Hi. of this session. And Okay. Welcome. yeah. So I have known Soumya Bhaiya for the last 2 to 3 years. Of course, he has been a great mentor in terms of fundamentals for me. He has been investing in the market for the last 7 to 8 years, and of course, he has got a great experience about the market, especially about fundamentals and picking multi-baggers through fundamentals. So of course, I'll just give a small description, and after that, I won't waste much time, and we'll start the session. So Soumya Malani, Soumya Bhaiya, as I call him, is a pass out from London School of Economics. He's a master. He's done from London School of Economics. He's a columnist in Money Control, ET, and various other magazines he writes for. Of course, he has a mentorship program also, which he runs, where he mentors people on how they can make their portfolio. And of course, he has his research firm as well. So before that, of course, he's an investor. He's an investor. He's a long-term investor in the market. He has been investing for the past a decade, and of course, he has learned a lot. And today, he'll be sharing all his experience, his knowledge, his wisdom with us. So a warm welcome to you, Soumya Bhaiya. Yeah, Yash, I'm so happy to be here. Thank you for making this happen. And thank you everyone for joining in. I hope this will be productive and all of you guys get to, get to learn a lot and have some valuable inputs from my side as well. Okay. So if I may ask you, like, of course, everyone wants to know that how did you enter stock markets and what was your zeal that time, that why should you enter the markets, and what fascinated you about stock markets? So basically, see, my grandfather used to invest in stock market, so I was always very curious as to what he did. Right from childhood, I used to see balance sheets and all physical ones coming at our home. So he was also a businessman, so stock market was kind of his hobby, and he pursued it with a lot of passion. So I got to learn a lot from him. And then being a Marwadi and studying entire study being in finance, I landed up in stock market where both the worlds meet. So that's what the story is all about. Yeah. Okay, great. So it's a great story. So of course, from childhood days, you're reading about markets. You took inspiration from your grandfather about Right. markets. But I think the current situation is the situation we have never seen. Of course, we are there in a pandemic. COVID-19 is there. So, Right. what are your thought processes about the economy, and what are the fundamentals going on, and how do you see the markets ahead? So, see, I have always believed that in markets also it's very important to realize what time of period you are there in. So, not every time you have to be very aggressive, you have to be defensive also. Like most of us would be lovers of cricket, right? And not every day you can go out and play a T20 game. Sometimes you have to play a test match game as well. And especially when there's a green drop. So, this is somewhere a place where, a great opportunity with uh, a lot of carefulness both meet at the same place. Why opportunities? Because see, ultimately, whichever investor you look, they have made money of their wealth in in cycles. So we always focus on 1 day, 2 day, or probably a year's return, but our major goal should be to play out a cycle very well. And if you look at all the great investors, they have made majority of their money by playing a cycle properly. So cycles begin once a bear market ends. So once this ends, the corona
thing, whatever. I'm sure we'll have another great cycle ahead, and definitely there will be corrections in that cycle as well. But what is more important is that you build a solid portfolio and you focus on playing the cycle. You focus on changing your life rather than just getting 1 or 2 days return. Now the other point why it is a tough time, because there's a lot of uncertainty around. So businesses have been hit left, right, and center, as a lot of you would be working for some businesses, a lot of you would be owning businesses, and you know that how things are. But one thing that is important is that stock market always bottoms before the economy does. So it's time to be careful, but to pick a few shares of some high conviction companies slowly over a period of time, so that you can play the coming cycle very properly. Okay, so that was quite insightful. So, of course, the main motto is to stay invested in the markets and, of course, uh, ride through these tough times to make money. So, Right. again, I have one more question for you. Like, of course, a lot of people ask me, and of course, they have a lot of, I think our viewers will also have that doubt that फंडामेंटल जब भी हम लोग फंडामेंटल के बारे में सोचते हैं या फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं तो इट लुक्स लाइक लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स लाइक P ratio, then there's management study, then there's balance sheet study, then promoter se jaake milna hai. So there are a lot of things involved. So Right. how, as a layman person, how we can start with fundamentals and how we can go about it? Like just give us a guidance. I totally agree with you, Yash, because what happens now, nobody actually guides people in a proper manner. So everybody will tell annual report पढ़ लो, annual report पढ़ लो. अरे एक normal आदमी जो कभी annual report पढ़ा नहीं है, he goes and he opens annual report of Tata Steel or a Reliance, which would be probably this fact, and वो information में ही डर के छोड़ देता है कि ठीक है ये चीज मेरे लिए नहीं है. I have seen a lot of people who are very good and who are chartered accountants and have masters or whatever in accounting field also struggling with it, because see, understanding balance sheet is a different thing. Understanding balance sheet with respect to stock market is a different thing. It is like आप कुक हो, आपको इंडियन बनाना आता है, इसका मतलब ही नहीं आपको चाइनीज रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाएगा. तो वो स्किल सेट तो वही है, आपको बनाना आता है, आपको बैलेंस शीट पढ़ना आता है, लेकिन एक इन्वेस्टर के तरीके से या एक एक चार्टेड अकाउंटेंट के तरीके से वो मैटर करता है. तो वो स्किल सेट उठाने का जरूरत है. So one thing I always tell to everyone is that when you are starting out, start with simple businesses. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप invest करो. Firstly, a disclaimer: whatever stocks I discuss about here, I might or might not be invested. None of them are recommendations. If you do invest, then please consult your advisor, and he will advise you according to your risk appetite. So I always recommend people, and this is not an investment advice. I don't have investment in any of these companies. I always tell people to start with Inox and PVR. आप ये दोनों पढ़ो, लेने के लिए नहीं, सीखने के लिए, क्योंकि आपको समझ में आता है कि आइनॉक्स क्या करता है. वो पॉपकॉर्न बेचता है 400 रुपए में, वो पिक्चर दिखाता है, वो एड लगाता है और उससे पैसा कमाता है. तो एटलीस्ट यू विल नॉट गेट बर्डनड बाय सो मच इंफॉर्मेशन. तो आप कैसे स्टार्ट करते हो वो जरूरी है. सब लोग बोलेंगे एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, लेकिन किसका पढ़ें? इतने बड़े कंपनी का आप खोल लोगे जिसका 200 सब्सिडियरी है, you will be crushed under so much information. You will say that this is not meant for me. So you have to start with ABC, right? And so that is where the focus should be. And I would say it's not simple. You have to dedicate a lot of time, but ये नहीं बोलूंगा कि हो नहीं सकता है. And we'll see how a lot of misconceptions are there in the market. And see, there are 1,000 ways of making money in the market. सब लोगों की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है. कोई 2 घंटे में बेचता है, कोई 2 साल में बेचता है, कोई 20 साल में बेचता है, कोई नीचे खरीदता है, कोई ऊपर खरीदता है. एक थॉट प्रोसेस और अपना एक प्रोसेस बनाने का दरकार है. अमेजन पे भी कोई जाता है तो कोई हाई टू लो सर्च करता है सामान लेते हुए, कोई लो टू हाई. अपने अपने एक तरीका होता है, आपको उस तरीके पे काम करना है, उसको शार्पन करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको एक प्रोसेस से काम करना है. अभी जिसको भी पूछो, whenever I ask people that what kind of returns are you looking at, they will say that okay, we are looking at 18 to 25% CAGR, whatever. But then the kind of movements they make in portfolio, and जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, कोई ट्वीट किया उसका ले लिया, इधर से उधर ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया. इट सीम्स लाइक एक्टिविटी इट इज हैपनिंग कि आपको 100% बनाना है. So 18 to 20% you can make. Obviously, it will not be in a continuous manner. Markets are non-linear. Returns in markets are non-linear in nature. कभी 100% भी बनेगा तो कभी 20 और कभी -20 भी.
बट ओवरऑल अगर आपको एक रीजनेबल 18% 20% से कंपाउंड करना है, विच इज मोर और लेस 3 to 4x टाइम ऑफ व्हाट यू गेट इन एफडी आज के दिन में, तो इतना मतलब एक प्रोसेस से काम करना जरूरी है, एक तरीका होना चाहिए, स्टेप वाइज काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि you are just following different people at different time. A lot of people watch these great investors का नाम in a particular company and they end up buying it, but that guy can see 50% drawdown and maybe can stay invested in 20 years. आप तो 20 दिन का सोच रहे हो या 20 घंटे का। So it's very important कि आपका या आप जिसको फॉलो कर रहे हो वो थॉट प्रोसेस मैच होना बहुत जरूरी है। Okay, so it was a really great answer. So as अगर मैं उसको summarize करूँ, if I summarize Right. what you told, the first start with very very small companies, very companies which are very easy to understand, like Inox and PVR, and of course that from there you should catch up and annual report, study balance sheet again, right? या That is एंड very important. वन मोर पॉइंट, एवरीबडी ना जिससे भी बात करो जो मार्केट में आता है, एवरीबडी वांट्स कि आई वांट टू स्टडी समथिंग दैट कैन बी बॉट राइट नाउ, so they don't want to go back into the history and see what has worked, what has not worked. In markets you have to be a student of history and psychology more than finance. तो आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, आपके आंख के आगे से मल्टीबैगर निकल जाएगा, आप पकड़ नहीं पाओगे अगर आपने वो प्रैक्टिस नहीं किया है। वो प्रैक्टिस नहीं है। तेंदुलकर भी उतरता है तो वो नेट तेंदुलकर भी प्रैक्टिस उतरता है तो वो नेट प्रैक्टिस कैसे उतरेगा? यश, आई गेस योर Uh, speaker is on, the voice is echoing or somebody is not muted. Okay, now it's fine. No, now it's So, fine. yeah. So what I'm saying is even Tendulkar or a Virat Kohli needs to do net practice. They also go back into the history, see how pitch has behaved, how things have happened in the past, and then they play accordingly. एक particular जगह का. तो what makes us feel that हम ऐसे ही स्टॉक मार्केट में आएंगे और हो जाएगा सब कुछ? So हिस्ट्री में जाना जरूरी है। आप जाके पुराने मल्टीबैगर पढ़िए, आप जाके पुराने okay, so people are saying that I should just stick to English. I thought a mix of it will be beneficial for both. No, it's fine. So maybe we can stick to both because I think people will understand both the things. So Okay. Please bear with us. Okay. Okay, We'll I'll try try to convert if I say something in English so that people get benefit of it. So basically, Yeah, sure. see what I'm trying to say is बहुत जरूरी है आप हिस्ट्री में जाके पढ़ें। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आइनॉक्स पीवीआर पढ़ो, आप कोई बिजनेस में हो, आप कपड़े के बिजनेस में हो, इफ यू आर वर्किंग फॉर अ बैंक और whatever, you understand that business, go and study that business, not with the view of buying it, just with the view of learning. ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है और सीखे बिना नहीं बनेगा। दिस इज, देखो कोई भी प्रोफेशन ले लो, एवरीबडी सेज दैट स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, लॉस होता है, तो in any profession there are only few elite people, right? So we have to replicate what elite people are doing to be successful in the markets. So go back to the history, सिम्फनी पढ़िए, अवंती पढ़िए, जो स्टॉक ने पैसा बनाया, हीरो होंडा पढ़िए, बजाज फाइनेंस पढ़िए, एंड देखिए उस समय के एनुअल रिपोर्ट से पढ़ के समझिए कि हो क्या रहा था उस वक्त, राइट? रादर देन जस्ट अभी बताओ, तो समझ में कैसे आएगा कि क्या हो रहा है? So I hope the point is clear and we'll discuss a lot of things going forward. I believe Okay. we'll not complete in I guess 1 hour. So yeah. Great. So of course, studying the history of promoters, studying कि क्या हुआ है companies में, अगर आप historical analysis करते हो, like we do it in technicals as well, we do a lot of historical analysis, and उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं so that we get to know कि what happened in history and history may repeat itself. Right. So right. Again, Soumya, as you mentioned that market works in cycle. तो ये क्या बहुत जन मुझे पूछती कि साइकिल होता क्या है, कितने सालों का होता है, and how does it work out? So can you just give a brief on कि cycle कितने सालों का होता है and how to play on stocks and sectors in that? So first thing is I feel the cycles have shortened. तो पहले जितने लंबे cycles होते थे वैसा नहीं. Everybody saw that this time the fall was the steepest, it was the fastest, and due to electronic trading, social media में information is readily available with everyone. So जो भी re-rating stock का होना होता है या market भी जैसे जाता है, वो जो पहले 3 साल में होता था वो अभी 1.5 साल में हो जाएगा. So also you also have to adjust your strategy accordingly. Also I even after being an investor I'm not of the camp कि आप लो और 20 30 40 साल उस स्टॉक को रखो.
हाँ रखो, कुछ स्टॉक को जरूर रखो, जब तक ग्रोथ है रखो, लेकिन नॉट ये हमेशा ध्यान रखना है, नॉट एवरी स्टॉक इज HDFC बैंक, नॉट एवरी स्टॉक विल बिकम आइशर मोटर। आपके लिए जब एक स्टॉक 4-5 गुना या 2-3 गुना हो जाता है, यू फॉल इन लव विद दैट एंड यू फील दैट ये प्रोबेबली 50-60 टाइम्स हो जाए, बट वो ऑन द मेरिट ऑफ बिजनेस उसको जज करना है, ऐसा नहीं इमोशन पे जज नहीं करना है। सो आई बिलीव सेलिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज बाइंग। In fact, not to boast or anything, but if you talk to my, we were very lucky this time. If you talk to my mentorship guys, we were in 90% cash by 2nd of March. तो वो जो क्रैश वैश सब आया, सो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ प्रोसेस। ऐसा नहीं था कि एक व्यू था कि कोरोना हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। We did not have any such view. You have to have risk management. So I always say that pay 10% attention on price action, 70% on fundamentals, फाइनल डिसीजन बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, लेना है नहीं लेना है, क्या करना है, एंड 20% इज एग्जीक्यूशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। उसके बिना कुछ नहीं होगा। वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी भी आप ले लो, जरूरी नहीं है कि वो अभी के टाइम पे बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो। वो बेस्ट कंपनी हो सकती है, लेकिन हो सकता है बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो। केस स्टडीज भी आएंगी इसकी, जैसे सन फार्मा ही ले लो आप, 2015 में ब्लूएस्ट ऑफ ब्लूएस्ट चिप था, तो जरूरी नहीं था कि उस समय वो 1200 रुपए पे बेस्ट इन्वेस्टमेंट था। तो ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। Okay. So of course, as Bhaiya told, that risk management is very very important. Of course, I also believe the same totally. Of course, आप fundamentals देख रहे हैं, technicals देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, but आपको risk अपना manage करना बहुत जरूरी है. Even if a good company, if you buy at a higher price and you don't manage the risk, then of course you can bear a big loss. Okay, so one last question before I give you the floor to start your presentation is कि अभी मुझे बहुत सारी जन के क्वेरीज भी आती है कि दे हैव बॉट गुड फंडामेंटल स्टॉक्स, मे बी फॉर एग्जांपल दे हैव बॉट HDFC बैंक एट 1200 and maybe they have bought Bajaj Finance at 3500 or 4000 and they've got stuck and अभी उनका पोर्टफोलियो में वो 30-40% नीचे है. So what would be your suggestion as a fundamental guy to them? Ki should they keep on investing or should they average it or should they exit and maybe buy some other sector or some other stock? Like person. So again, it's not a recommendation. I'll just share my view. So take it with a pinch of salt. So my thing is, dekho, you'll understand as the session goes, I don't like buying things that are falling. So and I'll give you reasons for that as well. So firstly, I would have never bought those shares at those prices, not because they were expensive, but because they were falling. So I like buying things that are going up. And if you see, that strategy has really worked well for me. There are different strategies. People have maybe specialized in buying bottoms also. But I don't have that expertise. I know what works for me and I'm ready to stick on that. Now, I also do not believe in averaging down. Averaging down बोल के कुछ होता ही नहीं है मेरे डिक्शनरी में. All I believe in is averaging up. And because it's like averaging down मतलब क्या, अगर आपके मान लो you are owner of 4-5 businesses and you keep on averaging down, जहाँ पे लॉस हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो बिजनेस प्रॉफिट दे रहा है वो भी बंद हो जाएगा. तो मार्केट में सब बहुत मिसकंसेप्शंस है एंड पीपल कीप ऑन सेइंग दिस बिकॉज ये इंडस्ट्री ऐसे चलती है, जिसको बेचना होता है उसको वो बोलना पड़ता है, अदरवाइज पैसा कौन लगाएगा. बट आई रियली डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स and we'll see it. So I'll pause this answer now and we'll see when we go into the slides, because otherwise it might confuse people. Okay then everyone. So this was a small moderating Q&A I wanted to do with Soumya, but now we'll come to the main topic for which he has come to share knowledge, to share his wisdom and share his experience with us. Of course, he'll be sharing a lot of things on fundamentals. He'll be sharing on how we should pick good stocks for long term for fundamentals, what patterns you should see while picking up these stocks while through fundamentals, while adding them in your portfolio. And so what I request is please have a patient hearing, because it may be a little long, but I can guarantee you that it would be a great knowledge sharing session. You will get a lot of value addition in that. Okay, so now the floor is all yours, Soumya. You can go ahead and I will advise everyone to please mute yourself, and we'll have a Q&A as well at the end. So please wait for your questions and please be patient until the end. Thank you. Soumya, you can go ahead. Yeah, I'll just share my screen so that all of you guys can see the
presentation as well. Sure. So full screen, yeah. I would request everyone to put in chat box. All of you can see the presentation, right? Yeah, we can see your presentation. Perfect. So yeah, just a second. I'll stop the annotations. Just a second. The annotations are already stopped, so I would cannot... need the annotations. So can you just Okay. yeah. So you can use the whiteboard. Yeah, if you want to write anything. So you want just to write give something me on the the... access to annotations. We'll stop it Okay. if you know there's an issue. Okay, I'll try to give Yeah. give you the access. Yeah. Yeah. Just a second. Let me just start. Perfect. So the topic for today's session is how to pick winning stocks. It's a very, the time constraint is there, and I can probably speak for weeks when we talk about markets. So we'll try and see how much we can get in this session, and I'll my job will be to give my best and to add as much value as I can in whatever time we have. So just a little bit about me. Already, Yash has spoken about it, so I won't spend a lot of time. I did my master's in accounting and finance from London School of Economics. Was very fortunate to do it. I am the founder of the mentorship program where I actively mentor and guide stock market participants in a live manner. And I was one of the state toppers in secondary, higher secondary with all India ranks in CA and CS. I was lucky to spot out a few multi-baggers when they were at a very tiny stage. Also, Yash has already mentioned that we have written columns on Economic Times, Money Control, and Morningstar. So that's a little bit about me. Now, again, the disclaimer I've already said that the stocks that we are discussing are not recommendations. So straight away to the point, I want you guys to tell me, do you tell market what you like or you listen to the market and hear what it likes? क्या आप मार्केट को बताते हो कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, कि मार्केट की सुनने में आप बिलीव करते हो कि मार्केट मुझे अभी क्या कहना चाह रहा है? आप कैसे स्टॉक्स को चुनते हो कि ये स्टॉक्स मुझे पढ़ने हैं? इतने सारे स्टॉक्स लिस्टेड है. हाउ डू यू रियली pick stocks which you want to study, and do you follow process or is it randomness? So everyone, I want this session to be interactive. Everyone, please use the chat box. Whenever I ask a question, please write. You don't ask a question right now because that will disturb the flow. So everyone, what do you do? Do you what is the process that you have in terms of selecting stocks? You hear, how do you hear, Manish? So, yeah. Okay. So a lot of people have given their different processes. So let me just tell you. So there are so many different ways in which people approach the market. There are so many different ways in which they make money. So I will just share my approach, whatever works for me, and however I pick my stocks, right? And again, this is not the only way, and this is not the only right way. There are so many ways. I'll just stick to whatever I do. So everybody will say that PSUs are bad investments, right? अभी किसी से भी आप पूछोगे PSU कैसा इन्वेस्टमेंट है, सब बोलेंगे bad, right or wrong? Yes or no, guys? Come on in the chat box. Let us make this interactive. Everybody, I believe, would have had dinner, so I don't want people to sleep. Perfect. ये देखो 2007, 2002 to 2007, these were like the biggest wealth creators of the world, right? So you saw how BHEL moved from 10-20 rupees to 400 as well. And don't be surprised if this happens sometimes in future also. I'm not saying it will happen now looking at the conditions, but I'm just saying that we should keep open mind. Now the blue arrows, although this is a session on fundamentals, as I told you before, that 10% is price action where I start. And price action doesn't really mean that analyzing RSI, etc., etc. I'm not really an expert in that, but I believe in buying strength.
So I believe in buying stocks which are hitting new highs, which are hitting new 6 months high, 12 months high, etc. And then I start my studies from there. So I listen to the market. I let market tell me what it is liking, and then I study. So a lot of you would be thinking that, okay, buying at a 52-week high would be very late. So all these blue arrows that you see here, can you guys see this movement of cursor? Yeah, we can see it. So a lot of you, we believe that 52-week high मार लिया है तो कितना late हो गया, and I know that by the time a stock hits 52-week high, it would have already moved 30, 40, 50% or 100%. Yeah, 6-month high also in certain scenarios. So you can see that even here, BHEL had already moved, around 50, 60%, but then that is when the move started. So it's not late. The problem with us is that if a stock has moved 40-50%, we just disregard it कि अब पढ़ के क्या फायदा, 50% तो move कर गया, तो हम पढ़ते ही नहीं. और वही गलती होती है. We end up buying all the stocks which are falling and we miss out on stocks which are probably gonna be multi-bagger. See, stocks rise because of a reason and fall because of a reason. So it's absolutely so just like, if stock is rising, that means कि बड़े लोग उसको ले रहे up, right? And maybe insiders and everyone know that, so know what is going to happen. So it is very important for us to be with the big players and not try to be smart. मार्केट में एक चीज क्वेश्चन अपने आप से डेली पूछना है, हीरो बनना है या पैसा कमाना है. दोनों चीज नहीं होगा. डेयर डेविल यहाँ बनने का जगह नहीं है. यहाँ पे अपने आते हैं, अपने पैसा कमाने आते हैं. हॉबी करना है तो कुछ और करो, right? So I believe that I always like buying into the strength. As you can see, the first time BHEL hit a new 52-week high was what, 10-20 rupees, and it just went up from there like a rocket. One disclaimer, हर stock के साथ ऐसा नहीं होता है. Stocks also fall after hitting a new high immediately. So that is why only 10% focus, and the focus is on starting with stocks hitting new highs. It's not with just seeing new high और खरीद लिया. उसके बाद 70% फोकस फंडामेंटल्स पे है जो फिल्टर कर पाएगा कि बिकॉज अल्टीमेटली प्राइसेस आर स्लेव्स ऑफ ग्रोथ. तो स्टॉक कितना भागेगा वो आपको फंडामेंटल ही बता पाएगा, बिकॉज वो कितना दिन तक ग्रोथ दे सकता है, वो कितना दिन तक ग्रोथ सस्टेन हो सकता है, और कितना ग्रोथ दे सकता है इन परसेंटेज, ये आपको फंडामेंटल पढ़े बिना नहीं समझ में आएगा, राइट? सो यू कैन नॉट प्ले बिग मूव्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट. So I want to ask you guys, I've already given answer to it, but आप लोग ये सुनने के पहले वाला व्यू बताना. Do you think buying a stock when it hits a new high is expensive and when it hits a new low is cheap? Guys, yes or no? Come on, in the chat session. So most of us feel that it is expensive, right? कि high पे ले रहे हैं तो वो expensive है, right? But if you go into the history and you study it, आप देखोगे ऐसा नहीं होता है. अगर आप ठीक से फंडामेंटली पढ़ के स्टॉक को ले रहे हो, BHEL, the red arrows are new 52-week lows. Now you see the problem with retail investor, normal investor is, यहाँ पे 10 रुपए से 20 चला जाएगा या 15 चला जाएगा, we will never study it, पढ़ेंगे भी नहीं. लेकिन 400 जाने के बाद आफ्टर हिटिंग 400 वो 280-300 पे आएगा ना, लगेगा फ्री में माल मिल रहा है. The thing which is now happening with HDFC and Bajaj Finance also, every retailer was bullish on that. जिससे भी बात करो, सर HDFC ले लूं, Bajaj Finance ले लूं, definitely these are great businesses and वापस उठेगा, wealth create भी करेगा. लेकिन उस समय ये अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं था जब वो गिर रहा था. Now you look how the red arrows, again I'm saying, are the times when it was hitting new lows. And अपने को लगता है ना सस्ते में मिल गया when it hits a new 52-week low. Right or wrong, guys? Yes or no? सस्ते में मिला कि नहीं? तो ये सस्ता हुआ क्या? Just look at it. गिरने लगा तो 52-week low, 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 low. इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर स्ट्रगल, इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर पैसा नहीं बना पाते. सस्ता सेल पे, मतलब सेंट्रल मॉल पे सेल लगे तब लेना है, मार्केट में नहीं लेना है,
क्योंकि आदमी सोचता है कितना और गिरेगा और कितना गिरेगा और कितना, अरे कितना भी गिर सकता है। आप 5 रुपए पे भी, एक कंपनी 100 रुपया से 5 रुपया आई है, आप उसको 5 रुपए में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो 2.5 रुपया होता है, तो आपका 50% कैपिटल वाइप्ड आउट। ऐसा नहीं है कि रिस्क तो 5 ही रुपया है, 100 से 50 होना और 5 रुपए से 2.5 रुपया होना में कोई डिफरेंस नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। सो कैन यू सी इट? या कैन यू सी इट? एंड व्हाट आई एम सेइंग इज न्यू हाई। अभी क्या होता है, बहुत लोगों को लगता है कि स्टॉक हैज फॉलन फ्रॉम 400, जैसे somebody is saying आइडिया, तो आइडिया लॉट ऑफ पीपल विल थिंक 120 रुपया था 2 साल पहले, नाउ इट वाज 3-4 रुपीज, तो कैसे ले सकते हैं? तो आप ये भी देखो ना, लो से कितना ऊपर चला गया आइडिया, तो 6 मंथ हाई 3 मंथ हाई मार के आगे गया है। आई एम सेइंग न्यू हाई 6 मंथ हाई 3 मंथ हाई, तो वो 100 नहीं जाना पड़ेगा उसको नया हाई मारने के लिए। आप आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो माय होल पॉइंट इज, नीचे से 20% ऊपर हो तो अपने पढ़ना भी नहीं है उसको, और ऊपर से 20% नीचे हो तो सस्ता लगता है। सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू, राइट? एटलीस्ट स्टडी इट। And again, I am highlighting it. New high is just a starting point. It is not a buy decision. ऐसा नहीं है कि आप न्यू हाई देखे और खरीद लिए तो 100% सक्सेसफुल आप नहीं होंगे, आप फेल ही होंगे। Lots and lots of work after that is needed. Many company hit new high and fall immediately. So new high is just a starting point कि आप उसको पढ़ना चालू करें, नीचे वाली कंपनी को नहीं पढ़ें। आज आप सोचो, इतने लोग बजाज फाइनेंस या ये सब में फंसे हैं, तो वो इसीलिए फंसे हैं ना, क्योंकि वो नीचे लिए जा रहे थे। मतलब एक टाइम पे जरूर पैसा बनाएगा, कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या पता 2-3-4 साल बाद बनाए, तो क्या करें, बैठे रहें? एचईजी में ही आप देख लो, कोई दिया है एग्जाम्पल, ऊपर चलते हुए तो किसी ने देखा भी नहीं था, क्योंकि लग रहा था अरे 100% भाग गया, बट नीचे गिरते हुए अपने लेते रहे। राइट और रॉन्ग, सबके साथ ऐसा हुआ होगा ना? अगर हुआ है तो यस लिखो, यस बैंक का एग्जाम्पल आएगा आगे। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप यस लिखो चैट में। There are so many participants. It will be lovely if everyone participates. It will encourage me also and it will add value to you guys also. So that is what I am trying to say, that new is just a starting point. ठीक है, तो सोच बदलनी है अपने को। Now look at Sun Pharma. Again blue arrows and red arrows. देखो कितना मजा आएगा अभी। आप देखो, ब्लू एरो पहली बार मार रहा था यहाँ पे 200 रुपया, वहां से गया 1200 रुपया। अब ये ऊपर चलते हुए तो अपने लिए नहीं, वी विल नेवर बाय व्हेन द स्टॉक इज गोइंग हाई। बट नीचे चलते हुए कितने लोगों ने लिया सन फार्मा कि ब्लू चिप कंपनी है और कितना गिरेगा, दवाई तो सब लोग लेंगे ही, इसमें क्या तकलीफ आ गई? ऐसे सोचे कि नहीं सोचे हम लोग? एंड वर्स्ट पार्ट इज 2016-17 का बुल मार्केट में भी सन फार्मा गिरे जा रहा था, तो एक तो हमने पैसा लगाया, दूसरा हम अच्छे बुल मार्केट में सस्ता लेने के चक्कर में फंस गए। वो नीचे जाते गया जाते गया जाते गया, एंड हम लोग सोच रहे हैं कि इतना अच्छा मार्केट है, सन फार्मा क्यों नहीं भाग रहा है? राइट? तो फंस गए ना उसमें। इससे बड़ा ब्लू चिप है क्या इंडिया में? एचडीएफसी बैंक, सन फार्मा? यस और नो, है क्या गाइस? नहीं है ना? तो फिर इसमें हो सकता है तो किसी में भी हो सकता है। अच्छा, अभी सन फार्मा का 52 वीक हाई कहाँ है? वो 470 के आसपास होगा। आप लोग ये सोच होंगे कि 1200 से 300 आया है तो 52 वीक हाई कहाँ होगा? अब 470 के आसपास है, या 6 मंथ हाई कहाँ होगा? वो भी यहीं कहीं पे होगा, 400 के आसपास। तो कहने का मतलब ये नहीं कि वापस आपको 1200 पे लेना पड़ेगा, आप नया हाई का वेट करिए ना, उसके बाद आप स्टॉक को पढ़िए। सी, जब नया हाई बना रहा था कैसे लगातार बनाया जा रहा था, लेकिन पढ़ना जरूरी है। पढ़े बिना लेंगे तो रैंडमली भी फंस सकते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट भी जरूरी है। विल कम टू दोस पॉइंट्स एज वेल। नो बैंक, यस बैंक से नो बैंक अब सच में पॉसिबल। सो विल कम टू दैट, हाउ टू स्टडी अ स्टॉक एज वेल। पहले आई वांट टू बिल्ड अ थॉट प्रोसेस, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू शेयर। इसके बाद जो भी बोलूंगा एकदम समझ में आ जाएगा आपको। नाउ लुक एट यस बैंक। सो व्हेन वी वर सीइंग दिस, अच्छा यस बैंक क्या बुरी कंपनी थी? सीजन चेंज होता है मार्केट में, अच्छी कंपनी बुरी बन जाती है, बुरी कंपनी अच्छी बन जाती है। अपने में से कोई भी ऐसा है, अपने बोलते हैं बाय व्हाट यू सी, बाय व्हाट यू सी। Is there anyone who has not seen a Yes Bank branch?
Could anyone ever think that yes बैंक 4 रुपया 5 रुपया चला जाएगा 6 रुपया I guess was the low. मतलब हम लोग सोचे होंगे क्या कभी यस बैंक 6 रुपया चला जाएगा? तो look at it, when it started to hit a new high 30-40 rupees के आसपास, just see how it was moving up. Do you see any red arrows here? These are coded. मैंने नहीं put किया arrows, these are coded. 52 week highs and lows. Can you see any red arrows here? No, right? When it was going up. Do you remember any sell report at 400? नहीं. अभी एक रिटेल इन्वेस्टर क्या करेगा? 230 में जाएगा, सोचेगा सस्ता हो गया, वो 140 में एवरेज करेगा. दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग दैट डू नॉट एवरेज डाउन. 120 पे गया, अब क्या जाएगा? 400 रुपया का माल 100 में मिल रहा है, ये कपड़ा थोड़ी है. वो 100 रुपया का 20 रुपया हो गया और ले लिया. बाद में बोला कि शेयर मार्केट ही खराब है. मार्केट खराब है कि अपने को सही से मार्केट देखना नहीं आता? समझ में आ रहा है चार्ट देख के कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये टेक्निकल सेमिनार नहीं है, बट ये सोच डालनी बहुत जरूरी है और चार्ट बिना समझ में नहीं आएगा ये चीज. Are you getting my point? So do you think buying 52 week highs is expensive? कौन सा महंगा है? 52 week high पे लेना कि 52 week low पे लेना? क्या महंगा है? Guys, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लो पे ले नहीं सकते, ले सकते हो और कभी आपका पैसा भी बन सकता है. आप लकी हो सकते हो कि कभी आपने लो पे ले लिया और आपने बेच दिया, लेकिन कैन यू डू इट कंसिस्टेंटली? क्या वो स्ट्रेटेजी कहलाएगी कि वो लक कहलाएगा? ये भी जानना बहुत जरूरी है. और वो क्या आपका आदत बिगाड़ेगा? आदत बिगड़ जाएगा. पैसा तो जरूर एक बार बन जाएगा, लेकिन आदत बिगड़ जाएगा आपका. आप हमेशा वो हीरो बनने के कोशिश में रहोगे कि मैं नीचे से पकड़ लूं. नीचे एकदम बॉटम पे सिर्फ 2 जन पकड़ सकते हैं, भगवान और झूठा. कंसिस्टेंटली एक आधा बार सब पकड़ सकते हैं, किस्मत साथ दे तो. लेकिन स्ट्रैटेजी थोड़ी हो सकती है. स्ट्रैटेजी तो नहीं बना सकते ना आपकी 52 वीक लो पे मैं हमेशा ले लूंगा. दीवान हाउसिंग पे भी लगाओगे तो सेम स्टोरी है. सो सी वेयर इट स्टार्टेड टू हिट 52 वीक हाइस. 300 रुपए पे 330 रुपए पे नया 52 वीक लो देने लगा, जो अभी तक लो ही दे रहा है. और हाई देने लगा था जब 60-70 रुपया पे, तो 400 तक हाई दे रहा था. राइट और रॉन्ग गाइस? समझ में आ गया? If we buy at 52 week high, then when should we sell? That is a totally different topic. That can take another 2 days. तो अभी पहले ये तो समझ लें. Right? So let us go to the next slide. So एक कसम खा लो, never, 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 never average a stock on the downside. नहीं करना है downside पे. Now, one of the most important things that I want to share is that we find new reasons to buy stocks that are falling. ठीक है? And especially average करने के लिए, if we have a stock in our portfolio जो गिर रहा होता है, अपने नया नया रीजन ढूंढते हैं उसको अपने पोर्टफोलियो में पाल के रखने के लिए. और कितना गिरेगा, और कितना गिरेगा, कितनी बार सोच के स्टॉक लिया है और फंसे हो? फंसे हो कि नहीं फंसे हो गाइस? और कितना गिरेगा? पी रेशियो के हिसाब से चीप हो गया है, कंपनी तो अच्छी ही है. कोई बड़े इन्वेस्टर का फिर नाम देख लेते हैं कि दिस बिग इन्वेस्टर हैज बॉट इन द कंपनी, तो क्या जाएगा? फिर फंड होल्डिंग है, वो रीजन मिल जाता है. सारा रिसर्च तो स्टॉक आधा होने के बाद चालू होता है. उसके बाद भी लुक एट ऑल दीज पॉइंट्स. लेते समय तो ट्विटर पे किसी ने डाला और ले लेते हैं. राइट और रॉन्ग? पहले भी पैसा बना है स्टॉक में, ये बहुत बार होता है कि यू नो देयर इज ऑलवेज दिस प्लेस इन आवर हार्ट, कोई स्टॉक पैसा दे दिया तो. बट इज दिस अ प्रोसेस? ये कोई रिसर्च का स्टाइल थोड़ी है. दिस इज नॉट अ प्रोसेस. एक प्रोसेस से काम करना बहुत जरूरी है. एंड यस, यस बैंक सेटिस्फाइज ऑल दीज कंडीशंस. सो सी, एक प्रोसेस बहुत जरूरी है. रैंडमनेस से कैसे होगा काम? अगर फ्लाइट में भी चेकलिस्ट नहीं होती है तो फ्लाइट क्रैश हो जाता है. दे आल्सो हैव अ चेकलिस्ट. तो इन्वेस्टर कैसे बचेगा? सो नेक्स्ट पॉइंट, एवरी टाइम आस्क योरसेल्फ, हीरो बनना है या पैसा कमाना है? एक ही चीज आप मार्केट में कर सकते हो. या तो आप हीरो बन सकते हो या आप पैसे कमा सकते हो. तो
ये चीज हमेशा अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। नाउ just a second, there's some issue, just a second, just give me a minute. Yeah, okay, now we are back. Yeah, perfect. So sorry, But yeah, it's clearly visible. yeah, so next point. अगर अब यू विल आस्क मी, अगर ऐसे रिसर्च नहीं करना है तो फिर कैसे रिसर्च करना है, राइट? सो लेट अस कम टू दैट पॉइंट, multi-bagger patterns. So see, again, in 1 hour we cannot really discuss everything. In 2 hours also it will take a lot of time, but let us focus on few things that can add a lot of value. So I personally wait for a stock to hit a new high, be it a 6 months high or a 1 year high, 52-week high, and then I start looking into it. Usme bhi, if a particular sector is dominating and उसके उस सेक्टर के ज्यादा स्टॉक आ रहे हैं, माय फोकस विल बी टू रीड देम फर्स्ट एंड उस पे ज्यादा ध्यान देने का, बिकॉज हो सकता है कि एक बड़ी थीम बन रही हो. So what are multi-bagger patterns? See, these are basically fundamental patterns, fundamental things that you look into a stock, and if they are there historically, जो मैंने पढ़ा है और मेरी जो ऑब्जर्वेशंस रही है मार्केट की एज अ मार्केट का स्टूडेंट, तो उससे प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है कि यू माइट बी ऑन टू सम ग्रेट स्टॉक. But again, this is not the end of research. There is a lot of other research also, other parameters also that you have to study before getting into a stock. But I will today share fundamental patterns which I believe would be really interesting. So you will find these patterns consistently in stocks that have become multi-bagger in the history. So in case you find it in future, you can have a proper look at that, and I will also explain in a stepwise manner कि वो आप कैसे ढूंढ सकते हो. ऐसे नहीं कि सिर्फ बोल दिया और ये नहीं बताया कि कैसे देखते हैं उसको. But again, this the presentation will cannot really end fundamental analysis and cannot really explain everything in that. That will require probably 7 more days. So let us get into multi-bagger patterns. So these are the patterns. Like again, these are not chart patterns. Fundamentally कुछ patterns होते हैं जैसे negative working capital pattern, and again these are just 5. I follow few more because of time constraint. We have to restrict it a little bit. So negative working capital pattern, keep an eye on acquisitions and takeovers, eradication of non-core, diversification. Look at the spelling, versification, demerger in a sizable company, legacy companies witnessing induction of new generation. So we'll come and take each of these patterns one by one. नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पैटर्न. सो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पैटर्न क्या होता है? नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मतलब दूसरे के पैसों से धंधा करना. मतलब कि एडवांसेस, जैसे कि देयर आर सर्टेन बिजनेसेस जिनके माल का इतना ज्यादा गरज होता है दैट पीपल एक्चुअली पे, द डेटर्स नहीं होते उनके पास, एंड दे एक्चुअली पे एडवांस कंपनी को कि मुझे अपना गुड्स आप दे. सो बेसिकली दीज आर द कंपनीज in which the people are paying advances to get the products, the distributors, right? So all of us are related to some business or the other. Either we are working or we own a business. So all of us would agree, right? आज के जमाने में इतना competition है, advance कौन देता है, right or wrong? अगर advance मिल रहा है तो mind में बचता है ना, कुछ तो अच्छा कर रहा होगा कंपनी. There must be something right that the company is doing. That is why it is getting advances, right? So how do you spot it? Now we'll go step by step. So case studies लेंगे हिस्ट्री का एंड उससे सीखेंगे. पहला केस स्टडी है स्कैपलिन पॉइंट. खाली ज्ञान नहीं देना, केस स्टडी भी देखना है. नाउ this screenshot has been taken from a website called ratestar.in. ratestar.in and screener.in are two very good screeners to start your fundamental analysis. Definitely read annual reports, credit rating agency reports, sectoral reports, promoter के बारे में research करो, scuttlebut करो, सब करो लेने के पहले. But
to start with, you can use screeners as well. Now look at the cash conversion cycle here. ये दिख रहा है नेगेटिव में है, माइनस है ना, नेगेटिव में this screener.in.com. ये कैश कन्वर्जन साइकिल आप लोग सब देख पा रहे हो गाइस? तो ये नेगेटिव में है, मतलब इस कंपनी को एडवांसेस मिल रहे हैं, द कंपनी इज गेटिंग एडवांसेस. सो माय पॉइंट इज, ये कब से नेगेटिव में है? ध्यान से देखो, जून 2011 से नेगेटिव में है, उसके पहले का डेटा नहीं है इसमें. सो लेट अस जस्ट अज्यूम जून 2011 से नेगेटिव में है, राइट? जून 2011 सबने देखा. तो जून 2011 में कैप्लिन पॉइंट का भाव था 3 रुपया और जून 2010 में भाव था 1.5 रुपया. दिस इज आफ्टर ऑल द स्प्लिट एंड एवरीथिंग. ओके, सो नाउ आप ये बात बताओ कि इतनी छोटी कंपनी, उस समय मार्केट कैप बहुत ही छोटा होगा, देख के ही समझ में आ रहा है आप लोग सबको, इतनी छोटी कंपनी को एडवांस कौन दे रहा है? मन में आता है ना, ऐसा क्या कर रहा है? बड़ी बड़ी कंपनी को एडवांस नहीं मिलता है. व्हाट इज दिस कंपनी डूइंग? व्हाई इज इट गेटिंग एडवांसेस? करेक्ट? आता है ना ऐसा मन में? तो ये देखने के बाद मतलब वो एक सॉलिड हो जाता है कि इस कंपनी पे आप और टाइम दो और ज्यादा पढ़ो. एंड ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिनमें ये पैटर्न प्ले आउट हुआ है. कैश कन्वर्जन साइकिल इज अ इजी वे ऑफ लुकिंग एट इट, बट अगर आप स्क्रीनर पे देखोगे कुछ कंपनीज तो ये नेगेटिव यहाँ पे दिखेगा नहीं, लेकिन उनके एनुअल रिपोर्ट में जाके देखोगे, सिम्फनी का 2010 का एनुअल रिपोर्ट 11 का, तो आपको दिखेगा एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स. छोटी सी कंपनी, 100 करोड़ का एडवांस, 100 करोड़ का मार्केट कैप, तो लगता है ना कुछ तो धमाका करा होगा. ऐसा क्या कर रहा है यार, एडवांस में पैसा मिल रहा है. एंड देन वही अपने को ढूंढना है फंडामेंटली कि ये ऐसा क्या कर रहा है कि एडवांस में मिल रहा है. नाउ लुक एट इट अगेन, कमिंग टू 52 वीक हाइज. नाउ ये स्टॉक 1.5 रुपया पे था 2010 में. अगर बाई चांस 2011 पे आपका नजर भी जाता तो 3 रुपया हो चुका था. तो आप तो छूते नहीं क्योंकि 100% तो ऑलरेडी बढ़ गया है, और कितना बढ़ेगा, राइट? This stock did not make a new 52-week low in the entire journey from 1.5 to 783. ऊपर ही जाता चला गया. सब कंपनियां नहीं जाती है, ये एग्जाम्पल मैंने चुना है. बट अगर इस मतलब अपने ये नहीं लिए होंगे ना, क्योंकि हम तो वो कंपनियां ले रहे थे जो 52 वीक लो पे सस्ती मिल रही है, तो आप तो ये कभी ले ही नहीं पाओगे क्योंकि ये तो लो पे गया ही नहीं, राइट? तो ऐसा नहीं करना है. नाउ लेट अस सी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एज वेल. अगर आप ऑपरेशनल परफॉर्मेंस यहाँ देखोगे जून 2011, नाउ यू सी ये सेल्स ग्रोथ दिख रहा है सबको. एनोटेशन होता तो बेटर होता, बट कुछ अनलकी नहीं है, बहुत मौके मिलेंगे तो बेटर होता, बट अभी वो है नहीं तो कोई बात नहीं. सेल्स ग्रोथ देखो आप परसेंटेज वाइज, यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है, एक छोटी सी कंपनी 30%, 18%, 36%, 46%, मार्जिन भी देखो बढ़ रहा है. मैं एक बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूँ कि मार्जिन भी आप देखेंगे तो बढ़ रहा है. 24%, 27%, 33%, 40%, 46%, 49%, 53%. You look at net profit growth, say 27%, 74%, 84%. तो is this not extraordinary? My other point is, अगर आप ये ले भी लिए होते तो अपने तो ऐसे ही बेच दिए होते. अगर 100 पे भी लेता, 200 हो जाता तो बेच देते ना, कि 100% मिल रहा है बेच दो, और कितना भागेगा. ऐसे नहीं बेचना होता है, लॉजिक से बेचो. अगर कंपनी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, आप इतने अच्छे कंपनी को कौन से कंपनी से रिप्लेस करोगे? तो टिल द टाइम द कंपनी इज गिविंग परफॉर्मेंस ऑन अ फंडामेंटल बेसिस, डू नॉट सेल इट. बिकॉज वो मल्टी पे अगर सपना ही रह जाएगा हमेशा, अगर सब कुछ को 30-40% में बेचते रहोगे. एक थॉट प्रोसेस होना जरूरी है. एक काम करने का तरीका जैसे बाकी सब फील्ड में होता है, इसमें भी होना जरूरी है. राइट और रॉन्ग? सो यू कैन सी, डिड दिस कंपनी गिव अस अ रीजन टू सेल? अगर ले लिया होता, पहले ये बात करते हैं, क्योंकि बहुत लोग ले लेते हैं फिर बोलते हैं कि अरे पता है मैंने 100 में लिया था, 150 में बेच दिया, आज 800 हो गया. तो क्या फायदा हुआ? जो सुन भी रहा है उसको सुन के क्या मिलेगा? 100 में लिया था, 110 में बेच दिया, आज 800 हो गया. वो कोई
कोई मतलब हीरोगिरी का काम नहीं था। अगर आप 800 तक रखते तो हीरोगिरी होता। ये कोई हीरोगिरी का काम नहीं है कि बोल के क्या फायदा। हमेशा ऐसा ही होगा अगर प्रोसेस नहीं रहेगा तो। बोल के क्या फायदा, यहाँ पे तो पैसा कमाने आए हैं ना, यहाँ पे किसी को बोलने तो आए नहीं है देखो हम राइट थे, क्या होगा बोल के। तो मेरा कहने का मतलब है ऑपरेशनली सेल्स देख के, एकदम लेमैन टर्म्स में सेल्स देख के, मार्जिन देख के, प्रॉफिट देख के 70-80% प्रॉफिट बढ़ाने वाली कंपनी कौन सी मिलती है? आप लोग के पास है क्या? आप लोग के बिजनेस में ऐसे ग्रो हो रहा है क्या? तो अगर ग्रो हो रहा है तो उसको पकड़ के रखो ना, बेचना क्यों है? फिर बुरी कंपनी लेंगे 52 वीक लो वाली और फिर फंस जाएंगे। तो देखो जब ग्रोथ स्लो होता है तभी बेचना है, और वो भी ये सोच के बेचना है कि ये टेम्पररी है कि ये परमानेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई टेम्पररी इशू आया हो, प्लांट में थोड़ा आग लग गया हो, या कोई लेबर अनरेस्ट आया हो जो ठीक हो जाएगा कुछ टाइम में, राइट। नाउ सॉरी, what am I trying to say is, लेकिन एक बात बताओ जो nobody asked me till now, आपको 1.5 रुपया का जब कैपलिन पॉइंट था या 3 रुपया का या नेगेटिव वर्किंग कैपिटल भी था, कैसे पता चलेगा? एवरी डे आप क्या स्क्रीनर खोलोगे, 5-6 हजार कंपनी जो है उनको डालोगे और फिर उसको देखोगे कि क्या चेंज हो रहा है एवरी क्वार्टर? पॉसिबल है? नहीं ना। आपको कैसे पता चलेगा कि ऐसा भी कोई कंपनी है? आपको तो व्हाट्सएप में आएगा तब पता चलेगा ना, या टीवी पे। तो व्हाट्सएप और टीवी पे तो 400 पे आएगा, 300 पे आएगा, राइट की रॉन्ग? खाली 3 लोगों ने रिप्लाई किया, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स है, गाइस प्लीज रिप्लाई। राइट, 52 वीक हाई से। जब 52 वीक हाई मारेगा तब अपने पढ़ने लगेंगे। तो पहला काम करेंगे, स्क्रीनर खोलेंगे, स्क्रीनर खोल के देखेंगे कि क्या कितना ग्रोथ दिया है, क्या दिया है, उस पे जमेगा तो एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, कंपनी का कॉन कॉल पढ़ेंगे, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानने का कोशिश करेंगे, अगर माल बिकता है दुकानों में तो दुकानों में घूमेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन स्टार्ट कैसे होगा? 52 वीक हाई से। कोई और तरीका है कंपनी रेडार पे आने का जल्दी? अरे 1.5-3 रुपया छोड़ो, 100 रुपया में भी कोई रेडार पे आने का कोई और तरीका है? आपको कौन आके बोलेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कौन आके बोलेगा? 500 पे जब माल सबको बेचना होगा तो व्हाट्सएप और टीवी पे आएगा। बल्क डील में भी कुछ नहीं आएगा छोटी कंपनीज का। आ सकता है, नहीं आ सकता है मनीष जी। सो 52 वीक हाई, 6 मंथ हाई, ये सब को ट्रैक करिए एंड फिर अपना एनालिसिस स्टार्ट करिए। लो पे लेने से पैसा नहीं बनेगा, इतना तो क्लियर हो गया ना। मतलब पैसा बन सकता है, 1-2 बार बन सकता है, 10 बार बन सकता है, लेकिन कंसिस्टेंटली एक प्रोसेस नहीं बन सकता है। So let us move to the next case study. Yeah. So now the next is obviously, I just used this presentation yesterday for my mentorship guys as well. कल ही मैं उनको ये बता रहा था, obviously मतलब वहाँ पे केस स्टडीज ज्यादा है तो अपने को थोड़ा निकालना पड़ा, नहीं तो 1 बज जाता आप लोग का। तो 2-3 केस स्टडी और दिया हुआ है वहाँ। तो कल ही I had this session with my guys, so it's as fresh as you can get. So keep an eye the next pattern. तो अपने मल्टीबैगर पैटर्न पे थे, and the second pattern is keep an eye on acquisition and takeover, right? तो केस स्टडी लेते हैं अपोलो ट्राइकोट. This was one of the companies that I held, even Kaplan Point I held. तो ये सब कंपनीज में मैंने काम किया है. क्या होता है जब एक कंपनी, कैसे आपको पता चलता है कि एक्विजिशन टेकओवर होने वाला है? बीएससी ओपन ऑफर से आपको पता चलता है कि कोई एक्विजिशन या टेकओवर हुआ है. तो अगेन आपको क्या करना है, जब स्टॉक 52 वीक हाई मारता है, पहला चीज गूगल में जाके सर्च करना है अपोलो ट्राइकोट बीएससी ओपन ऑफर. सब नोट कर लीजिए. अगर कुछ आता है मतलब उस कंपनी में ओपन ऑफर हुआ है, मतलब कि कोई एक्वायर किया है, कुछ एक्विजिशन या टेकओवर हुआ है. अगर कुछ नहीं आता है तो समझ में आ जाएगा नहीं हो रहा है कुछ. अगर कुछ आता है, अगेन अपने को कोई सपने में तो आके बोलेगा नहीं ये हुआ है, और वी कैनॉट रियली सिट इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन एंड मॉनिटर ऑल द कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट दैट हैपन इन बीएससी एवरी डे. कर सकते हैं क्या दिन भर स्क्रीन पे बैठ के सारा अनाउंसमेंट पढ़ो? तो कैसे पता चलेगा ये हुआ है?
गेटिंग माई पॉइंट गाइज, फ्रेंड्स? समझ में आया? तो जाके BSE ओपन ऑफर करने का, वहां पे ये दिखेगा आपको। तो वंस यू ओपन इट, आपको दिखेगा कि ठीक है, इसमें ओपन ऑफर आया है। ऑन बिहाफ ऑफ, देखना है कि कौन सी कंपनी या किस आदमी ने ओपन ऑफर दिया है। इंपॉर्टेंट है ना टू नो हु इज द गाय हु इज कमिंग इन, हु इज टेकिंग इंटरेस्ट इन द कंपनी। सो वी कैन सी हियर श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग। तो अभी समझ में आ गया श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग। सो व्हाट इज द नेचुरल नेक्स्ट पॉइंट? देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, 1 2 3 4। इससे इजी वे में इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं समझी जा सकती। कैसे कैसे करना है सब बता रहा हूं। अगर अभी बोल दूंगा कि सिर्फ आप मर्जर एक्विजिशन देखो तो मैं स्मार्ट लगूंगा, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होगा। यू विल नॉट गेन एनीथिंग फ्रॉम इट। यू विल जस्ट थिंक हाँ ठीक है, ही नोज, but that would not benefit you. So try and understand what I am trying to say honestly. थर्ड स्टेप क्या होता है? जब आपको नाम पता चल गया तो आपके मन में आना चाहिए कि कौन है जो लिया है, इस कंपनी के बारे में पता करें, श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग। सो यू गो zobacorp.com, एक साइट है, वहां पे आप सर्च करेंगे तो इसका पूरा यू विल गेट टू नो हु आर द डायरेक्टर्स एंड हु आर द कंपनीज पीपल बिहाइंड दिस कंपनी. So when I saw that, I saw name of Sanjay Gupta, right? And Sanjay Gupta, then you Google about all these names. I knew Sanjay Gupta because मैं full time market में हूँ, आपको शायद नहीं भी पता हो सकता है. So you go, you Google all these names, जो भी director list में है, then you will get to know about Sanjay Gupta. This was one article which we wrote for Economic Times way back on Apollo Tricoat. So संजय गुप्ता इज अ गाय जो बिहार ट्यूब्स नाम की एक कंपनी है, उसको टोटली यूजलेस कंपनी को ही कन्वर्टेड टू अ बिजनेस ऑफ 7,000 करोड़ इन 12 years. एंड अपोलो ट्राइकोट में ही हैड द विजन ऑफ building a premium product that is hardly produced by few players in the world. Now, in APL Apollo, so Sanjay Gupta is promoter of APL Apollo also, which was very big wealth creator in Indian stock market. तो आपको दिख रहा है कि this guy has created wealth, right? अभी अगर दो कंपनी है, मुकेश मोटा भाई की और अनिल भाई की, छोटा भाई की, आपको पता चला कुछ नहीं पता धंधे के बारे में, सिर्फ नाम पता है किसका है, किसके धंधे में पैसा लगाओगे? चैट बॉक्स, किसके धंधे पे लगाओगे पैसा? मुकेश भाई कि अनिल भाई? मोटा भाई ना। तो वही बात है, अगर इस आदमी ने पहले पैसा बनाया है और एक कंपनी को बहुत अच्छे से मैनेज की है तो एक ट्रस्ट फैक्टर आता है ना, तो और इंटरेस्ट बढ़ गया अब इस कंपनी को पढ़ने में। तो आप एपीएल अपोलो के बारे में पढ़ने लगे तो आप देखें कि ये तो सिमिलर बिजनेस है जैसा पहले किया, बस प्रोडक्ट थोड़ा अलग है। तो आपको ये भी माइंड में आना चाहिए दैट इफ द बिजनेस इज सिमिलर देन ही विल बी एबल टू यूज अपना नेटवर्क, अपने इतने साल का एक्सपीरियंस, अपना इतना जो भी उसका नेटवर्क है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, राइट? तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपकी सोच बढ़नी चाहिए। ये अनाउंसमेंट जब आया था, ये जो स्माइलीज मैंने यहाँ बनाई है, ये प्राइस था, ठीक है? ये भूल जाइए कि पहले प्राइस भागा। अनाउंसमेंट आने के बाद भी जब ये 52 वीक हाई मारा तो भी लेट नहीं था स्टॉक लेने में। तब भी आप अगर पढ़ते, और तब टाइम था अप्रैल 2019, आप अगर स्क्रीनर भी खोल के अप्रैल 2019 के वक्त पे आप स्क्रीनर पे नॉर्मली जाके देखते कि रिजल्ट कैसा आ रहा था, तो अप्रैल 2019 में अगर आप वेट करके रिजल्ट देखते तो आपको कुछ दिन बाद ही, अगर आप रेडार पे रखते, तो आपको दिखता कि आपको दिख रहा है ना चेंज मार्च 19 से जून 19 में। You can look at the change, right? From sales of 5 crores went to 52 crores, margin of 4% went to 12%, and net EPS of 0.06 went to 1.3.
तो तुरंत नहीं लेना है कि संजय गुप्ता आ गया तो कुछ कर देगा, हो सकता है नहीं कर पाए, हो सकता है नहीं कर पाए। सो वेट फॉर स्टॉक टू हिट अ न्यू हाई, वेट फॉर द रिजल्ट्स टू कम। एक कंफर्मेशन चाहिए अपने को, अपने ऊपर ले लेंगे लेकिन कंफर्मेशन के बाद लेंगे, राइट? वॉज दिस टफ? स्टेप बाय स्टेप समझ में आया? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन बिकॉज बहुत सारा कंटेंट है एंड वी हैव टू कवर। इट इज द सेम पैटर्न, यही वाला एक्विजिशन एंड टर्नओवर का, एक्विजिशन एंड टेकओवर का, श्री दिग्विजय सीमेंट। ये भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे, अभी उल्टा करेंगे अपने। तो आप यहाँ पे देखो, स्टॉक ने एक नया हाई मारा, 6 मंथ हाई 19-20 रुपए पे। तो जब वो 19-20 रुपया पे था तो मैं क्या करूंगा, पहले जब नया हाई मारेगा गूगल करूंगा श्री दिग्विजय सीमेंट ओपन ऑफर, उसमें यहाँ पे मेरे को दिखाई दिया। और ये 19-20 पे टाइम पे भी ध्यान दीजिए सब, अक्टूबर में दिया, ये अक्टूबर 2019। अक्टूबर 2019 में मुझे एक आर्टिकल दिखा नवंबर 2018 का, 11 महीने पहले का आर्टिकल गूगल करने पे मुझे दिखा कि ट्रू नॉर्थ टू बाई 75% ऑफ श्री दिग्विजय सीमेंट फ्रॉम ब्राजील्स वोटो, वो जो भी है वोटो रेटियम जो भी है, मतलब पता चला कि इसमें कुछ ओपन ऑफर हुआ है, किसी ने इस कंपनी को लिया है, ठीक है। अब अपने जब ट्रू नॉर्थ के बारे में गूगल किए तो अपने को पता चला कि आपको सिर्फ इसके, ऑब्वियसली आप डायरेक्टर्स ये सब देखोगे, यहाँ पे अपना बात हुआ ही है कि आपको वो देखना है कि कौन डायरेक्टर है कौन नहीं है, राइट? स्टेप 2 समझ में आ रहा है? स्टेप 2 गाइस, तो आपने देखा अनिल सिंघवी है, ये जी बिजनेस वाले नहीं है, ये दूसरे हैं। तो कल एक्चुअली बहुत लोगों ने पूछा था जब मैं मेंटरशिप में कर रहा था, तो इसीलिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया। तो दिस अनिल सिंघवी वाज गॉट अपॉइंटेड। नाउ थर्ड स्टेप क्या था, व्हाट डिड वी डू विथ दिस गाय, एपीएल अपोलो के संजय गुप्ता का, उनका गूगल करो कि ये आदमी कौन है जो आया है, क्योंकि कंपनी तो आदमी चलाएगा। अनिल सिंघवी गूगल करते ही अपने हैं 2018 में, अपने हैं 2019 अक्टूबर में, आर्टिकल है 2018 का, ये अपॉइंट हुए थे 2019 अप्रैल में, राइट? तो अपने उसके बाद के टाइम पे है। अपने जब गूगल किए, वी गूगल दैट अबाउट अनिल सिंघवी, ये आर्टिकल आया जुलाई 26 2006 का, पहला आर्टिकल यही मिलेगा आपको, मीट द बॉस ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रॉफिटेबल सीमेंट कंपनी। इसने बहुत बहुत साल, आई थिंक नियरली 2 decades और मोर, दिस गाय गेव टू गुजरात अंबुजा सीमेंट, एंड अंबुजा सीमेंट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सीमेंट कंपनी, छोटे से बड़ा इसने खड़ा किया है। अभी आपको नहीं लगता अगर वो इतने बड़े कंपनी को, इतने बड़े इतने बड़े लेवल पे हैंडल किया है, तो ये छोटे कंपनी का तो किस्मत ही बदल देगा। उसके नेटवर्क, उसके कनेक्शन, उसका एक्सपर्टीज, उसका कॉस्ट कटिंग, उसका काम कराने का तरीका, लगता है कि नहीं लगता है? दिग्विजय सीमेंट तो बहुत छोटी कंपनी है, यस और नो? माइंड में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कि सिर्फ यही आना चाहिए कि भाई श्री दिग्विजय का दाम तो 12 रुपया से 18 रुपया हो गया, अब नहीं देखना, और इसी को हम लोग सोचते हैं रिसर्च है। ये रिसर्च हुई क्या? इसको तो रिसर्च नहीं बोल सकते ना, ऐसा तो माइंड में आना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। तो अंबुजा सीमेंट आप पढ़ो जाके कि भाई उसने अंबुजा सीमेंट में क्या किया, तो आप देखिए इतना पैसा बना के दिया, कंपनी भी बहुत बड़ी बनाई। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है? ये आर्टिकल तो आ गया था 30 अप्रैल को, अगर बाई चांस, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं तो देखूंगा ही नहीं स्टॉक को जब तक नया 6 मंथ हाई नहीं मारेगा, लेकिन बाई चांस अगर आपने गलती से देख भी लिया या आपको कोई खबर में बोल भी दिया कि अनिल सिंघवी आ गया, आप बोले हाँ वो सीखा था वेबिनार में, बड़ा आदमी आ गया, ले लो। ये देखो 30 अप्रैल 2019, 30 अप्रैल 2019 कहाँ है? ये जो मार्क करके रखा है ना ग्रीन में, तब अनाउंसमेंट आई थी अनिल सिंघवी की। 26 रुपए से दाम 13 रुपया आ गया। आप लेते, आप तंग आ जाते, आप बेच देते, फिर आप बाद में भागता तो बोलते मैंने लिया था, हम तो काट दिया, और फिर भाग गया। तो ये कोई प्रोसेस हुआ? खाली अनाउंसमेंट सुनने से काम चलेगा?
गाइस 50% गिर गया स्टॉक उसके बाद, तो क्या फायदा? इससे अच्छा आप न्यू हाई का वेट करिए। अगर आपको कन्विक्शन है, आपको पता है, तो 6 मंथ हाई का वेट करिए, नहीं है तो आप 12 मंथ हाई का वेट करिए। तो 6 मंथ हाई मारा कब? नवंबर, मोरलेस अक्टूबर नवंबर 2019 में, राइट? तो अपने रिजल्ट देखो, उस समय अपने रेडार पे तो तभी आया। सो देन वी सी हियर क्या था, नवंबर 19, अक्टूबर नवंबर 19 का रिजल्ट देखो। नाउ सी, अचानक से सितंबर का तो अनाउंस नहीं हुआ होगा अक्टूबर 19 तक, होपफुली, बिकॉज बाद में ही होता है। तो जून का रिजल्ट तो अपने सामने ही था ना, जून का रिजल्ट तो आ जाता है जुलाई अगस्त तक, अगस्त एंड तक। तो आप देखो वो आदमी कब आया था? अप्रैल में। टाइमलाइन समझ रहे हो? टेक ओवर किया नवंबर में, अनिल सिंह भी आए अप्रैल में, अपने देख रहे हैं अक्टूबर में। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है ना चेंजेस। और जब भी कोई आता है ना, टेक ओवर करता है, तो सबसे पहले सेल्स भागे नहीं भागे, एफिशिएंसी भाग जाती है। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दे डू कॉस्ट कटिंग, दे जो भी मतलब ओल्ड मैनेजमेंट वुड हैव बीन साइफनिंग ऑफ और व्हाटएवर द केस में बी, दे वुड रिड्यूस दैट, दे वुड ओनली हैव प्रोडक्टिव एम्प्लॉइज, ये वो करके। तो तुरंत कॉस्ट कटिंग, मार्जिन देखो आप 1% से 24%, और नेट प्रॉफिट देखो यहाँ पे -16 पैसा से 1 रुपया 7 पैसा। तो कन्विक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्टॉक में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो प्रोसेस से काम करना पड़ेगा। अब थर्ड पैटर्न जो आता है, एंड डेफिनेटली मतलब ये रिसर्च करने के बाद भी और रिसर्च करनी होती है, बट वो अपने अभी डिस्कस नहीं कर पा रहे, टाइम कम है इसके लिए। लेकिन इसके बाद भी बहुत कुछ करना होता है, 10 9 ऑलरेडी हो चुका है। इरेडिकेशन ऑफ नॉन कोर डाइवर्सिफिकेशन, ये डाइवर्सिफिकेशन W वाला है, V वाला नहीं है। तो वर्सिफिकेशन मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन जो बुरे के लिए किया गया हो, जो फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचा दे। इसका केस स्टडी है सिम्फनी। सिम्फनी को आप देखिए, मैंने ये चार्ट्स इसीलिए डाले ताकि आपको ठीक से विजुअली समझ में आए, नहीं तो कन्विक्शन नहीं आएगा। और इसमें कोई टेक्निकल्स नहीं है, इसमें सिर्फ 52 वीक हाई और लो मार्क किया हुआ है ताकि आपको वो भरोसा आ जाए कि नीचे नहीं लेना है, राइट? सो लेट अस सी, सिम्फनी आप देखिए कि ऑल ऑफ अस कैन सी दैट 94 से उसका हालत खराब हो रहा था। 96 98 सॉरी 98 में तो मोर और लेस बैंक्रप्सी के पास था, 10-20 पैसा में बिक रहा था स्टॉक, राइट? एवरीवन कैन सी। एंड रेड एरोज ही रेड एरोज, नया नीचे जा रहा है, करेक्ट? फटाफट रिप्लाई करो यार चैट पे, मजा आएगा। नाउ सी, क्या बोला है अचल बखेरी ने, जो प्रमोटर है सिम्फनी के। जस्ट अ सेकंड, आई विल जस्ट टेक वाटर। He is saying, in 1994 we went public. The market and customers were advising us to expand our product range. The argument was that we cannot focus on only one product that is seasonal in nature. So we got into products that were either counter seasonal or sold around the year, such as geysers, room heaters, etc. etc. However, yahan dekho, however, those products spelled doom for the company. Company eroded its net worth, जो यहाँ पे दिख ही रहा है, right? It was really a nightmare. Some of my friends advised me to declare bankruptcy. Others told me to join my father's construction business. However, I had complete faith in my products. Symphony was developing eco-friendly and energy-saving air coolers, which Bakeri believed that was the future and not air conditioners. He decided to exit from all products except coolers and geysers. And by 2007, the company was debt free. By 2008, it started making profits. तो कंपनी ने क्या किया? इन शॉर्ट, एक कंपनी सिम्फनी थी, वो बहुत सारे प्रोडक्ट में थी, इतने सारे प्रोडक्ट में होने के कारण उसको नुकसान हो रहा था, लेकिन उसके कुछ प्रोडक्ट थे जो बहुत सॉलिड थे,
तो वो नुकसान में ही था, तो उसने क्या किया, वो सारे नुकसान के धंधे को बंद किया और सिर्फ एक चीज पे फोकस किया, और ये सिम्फनी जो था वो ये सिम्फनी बन गया, राइट। तो वी हैव टू वेट, अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो वो रेडार पे रखना है। आगे भी कोई स्टॉक में होगा तो माइंड में आना चाहिए सिम्फनी वाला गेम तो नहीं हो रहा है, अगर ऐसा हो तो अपोलो ट्राइकोट वाला तो नहीं हो रहा है, अगर ऐसा हो तो दिग्विजय वाला तो नहीं हो रहा है, अगर ऐसा हो तो याद रखना कैप्लिन वाला तो नहीं हो रहा है एडवांसेस में। और ये हिस्ट्री पढ़ने से ही आएगा, आप नहीं पढ़ोगे आपके आगे से मल्टीबैगर चला जाएगा लेकिन आपको नहीं दिखेगा। आज एक बात बताओ मुझे, ये एचडीएफसी बैंक है, एशियन पेंट्स है, आइशर मोटर है, पीडी लाइट है, ये कितना 52 वीक हाई मारे होंगे? 1000 गुना हुआ है, 500 गुना हुआ है, 100 गुना हुआ है, हर समय ही नया हाई मार रहा होगा। तो नीचे जाने वाले कंपनी को क्यों देखते हैं? लेना आइशर मोटर है, खरीदना खाई वाला कंपनी है, तो उल्टा काम करने से तो उल्टा ही कंपनी हाथ में आएगा। और फिर जब ये सब एशियन पेंट्स एचडीएफसी एकदम ब्लू चिप बन जाता, तब भरोसा आ जाता, तब ले लेते, राइट। तो ये तो आदमी बोलता है, पीपल से दैट दे आर कॉन्ट्रेरियंस, नीचे बाई करे हिम्मत दिखा रहे हैं, भाई हिम्मत कहीं और दिखाना, मार्केट में मत दिखाओ। अगर वो स्ट्रैटेजी पे आप बैक टेस्ट किए, वो स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क करती है तो ही हिम्मत दिखाओ, नहीं तो अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी बनाओ, एक तरीके से काम करो। रैंडमनेस से पैसा नहीं बनेगा, और बन भी गया तो चला जाएगा, एक तरीका होना बहुत जरूरी है। चलो लेट अस मूव अहेड बिफोर यश टेल्स मी टू क्लोज द पार्टी। सो अभी No, भैया, everyone is enjoying a lot. I think we have a great audience in Facebook as well, and यहाँ पे भी I am getting a lot of sponsor chat box. Please carry on. Please या carry on and share as much knowledge as you can. परफेक्ट, तो चलो बीवियां मारेगी सबकी एनीवेज। सो आज एक्सक्यूज मिल जाएगा सबको। या तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इसने दिवाली की सफाई की, और दिवाली की सफाई के बाद का परफॉर्मेंस देख लो। हर स्टॉक ऐसा नहीं चलता है, थोड़ा बहुत भी चले तो अपना काम तो हो जाता है ना। तो मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे सिम्फनी ने दिवाली की सफाई की ना, वैसे आपको भी पोर्टफोलियो की सफाई करना जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि अभी क्या है ना, डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। कुछ आपने गलतियां की होगी पास्ट में, समझो आपने एक्स कंपनी ले लिया, वो 50-60% गिर गया, और दूसरी एक एक्स कंपनी है, दूसरी कंपनी है समझ लो कि जो बहुत सॉलिड कंपनी है फंडामेंटली, वो भी 50-60% गिरी हुई है। तो अभी अपने स्टॉक्स को कन्वर्ट कर दो, उसी स्टॉक से पैसा बनाना जरूरी नहीं है। अगर मेरा जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो जाएगा, लंगड़ा चलेगा, तो मैं उसको थोड़ी ना बॉलर बना के टीम में रखूंगा, किसी और को लाना पड़ेगा ना। तो वही कहने का मतलब है, देखो आपने सपोज चालू किया 10 लाख के पोर्टफोलियो से, और 10 लाख का 5 लाख हो गया, अभी आप सोचोगे यही पोर्टफोलियो से मैं 10 लाख पे पहुंच जाऊं, जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट इज नाउ हाउ डू यू मूव फ्रॉम 5 लाख टू 10 लाख अगेन, ये जरूरी है ना। तो पैसा ही है, उसको बेच लो, दूसरा ले लो। वो 5 लाख का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसा है? तो जो भी गलतियां की है, बाद में क्या होगा मैं बताता हूँ, अच्छे कंपनी भाग जाएंगे, बुरे कंपनी वहीं रह जाएंगे, तो रिप्लेस कर लो ना। एक टाइम तो एक्सिस बैंक 66% डाउन था इस फॉल में, मैं नहीं बोल रहा हूँ एक्सिस बैंक लो, लेकिन मतलब अपने तो बहुत स्टॉक होंगे ना 60-70% डाउन, उससे अच्छा तो एक्सिस बैंक ही है। मरे तो एक्सिस बैंक में मरे, उसमें क्यों मरे एक्स वाई जेड स्टॉक में? राइट की रॉन्ग? आप लोग सोचते हो ऐसे? आप लोग सोचते हो ऐसे कि नहीं सोचते हो? हाँ, तो ऐसे सोचा करो, तो अपना भी करने के बाद यही होगा, दिवाली का सफाई जैसे सिम्फनी भागा, शायद अपना भी पोर्टफोलियो भाग जाए। तो नाउ अगेन माय पॉइंट इज, सपने में तो आएगा नहीं कि सिम्फनी में ये हो रहा होगा, क्योंकि सिम्फनी का तो नाम ही नहीं सुने होंगे। 30-40 पैसे की कंपनी का नाम कौन सुनता है, राइट? ये 2-4 रुपए में बिकने वाली कंपनी का नाम कौन सुनता है 2007 में? अपने पास तो व्हाट्सएप में मैसेज 600 पे आएगा ना, 1000 पे आएगा, जब अपने को लगेगा इतना भाग चुका है अब क्या ले। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे ये पढ़ना है?
गाइस फ्रेंड्स, आपको कैसे पता चलेगा ये पढ़ना है? 52 वीक हाई से ही पता चल सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप ले लो सारे स्टॉक, अरे नहीं लिया नहीं लिया, अपना एनालिसिस किया, लेकिन जाए तो मेरे नजर के आगे से जाए ना मल्टीबैगर, छुप के कैसे जाए? और कोई भी मल्टीबैगर 52 वीक हाई बार बार हिट किए बिना बन सकता है क्या? बन सकता है? पॉसिबल है? तो नजर के सामने से जाना चाहिए ना। तो कहने का मतलब when it hits a 52 वीक हाई, और पहली बार कब लिया? अब अगेन पहली बार इसने मारा 10-12 रुपए पे मारा है 52 वीक हाई, लेकिन अपने तो लेंगे नहीं क्योंकि उस समय वो ऑलरेडी 50-60% भाग गया होगा साल का। तो समझ में आया, पढ़ना चाहिए 52 वीक हाई स्टॉक्स को। सिर्फ बिकॉज इट हैज मूव्ड 30-40%, it's not that you stop studying it, that's not a process. Yes, it did hit few 52 week lows in between, बिकॉज ठीक है 2008 में मार्केट गिरा, 70% गिरेगा तो एवरीथिंग विल फॉल, so that is a separate issue. But then it again hit 52 week high here, you could have again studied it, again hit here, again studied it, right? And now look at the performance. आपको ये देख के कैप्लिन पॉइंट का फील आएगा, जस्ट लुक एट इट, प्रॉफिट ग्रोथ देखो आप यहाँ पे, हाउ द कंपनी वाज ग्रोइंग, देखो 52% सेल्स ग्रोथ, ठीक है 7% थोड़ा डाउन था, बट 20%, 40%, नीचे देखो मार्जिन देखो 23%, जो कि पहले बहुत कम थे, बैंकरप्सी पे था ये कंपनी, राइट? एंड पैट ग्रोथ देखो 38%, ये एक बुरा साल गया होगा, 13%, 76%, तो कंटिन्यूअसली ये भी आपको सिग्नल दे रहा था। दूसरा, अगर आप कंपनी पढ़ते, यू वुड हैव अंडरस्टूड दैट इट इज द लीडर इन एयर कूलर सेगमेंट। एक लीडर अगर आपको छोटी सी मार्केट कैप में मिले ना, दैट इज ऑल्सो अ पैटर्न दैट आई डिस्कस, बट यहाँ पे नहीं लिया है वो, लेकिन दैट इज ऑल्सो अ पैटर्न दैट अ लीडर इन इट्स सेक्टर बट स्मॉल मार्केट कैप, वो भी बहुत जरूरी होता है। तो वो बड़ा दिखता है, और इंडिया इतना बड़ा है, कूलर्स तो बिकेंगे ही, एंड स्केल ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो कंपनी बढ़ सकती है। तो इस हिसाब से उस समय सोचना था, और भी रिसर्च करना था। हाँ, कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं थी, दैट इज ट्रू, बट उसी के लिए ये कभी कभी नीचे भी गया ना, मे बी बिकॉज द समर्स वर नॉट दैट हीटेड, एंड ऑब्वियसली इट्स लिटिल सीजनल बिजनेस, बिकॉज गर्मी में ज्यादा कूलर बिकेंगे, ठंड में नहीं बिकेंगे, बट ओवरऑल एक बैंकरप्सी वाली कंपनी के लिए 700-800 करोड़ का, 1000 करोड़ का सेल करना बहुत बड़ा बात है। एंड उस समय जब नेगेटिव थोड़ा सा हुआ भी हो यहाँ पे, तो आपको ये देखना है ये टेम्पररी नेगेटिव है कि परमानेंट नेगेटिव है। वापस तो 71% ग्रोथ दिया, आप बेच भी सकते हो और फिर भी ले सकते हो, करेक्ट? जरूरी नहीं है दैट यू इफ यू हैव बॉट कि उसी के साथ रहना है, शादी तो की नहीं है कि अब कुछ नहीं कर सकते, तो आप बेच भी सकते हो, ग्रोथ कम हो रहा है तो, फिर वापस दिखाने लग जाए तो आप वापस पढ़ सकते हो कि अब क्या पोटेंशियल है। लेकिन उस समय समझना पड़ेगा किस कारण से वो गिर रहा था। हो सकता है कि उस समय उस साल गर्मी पड़ी हो, या कोई कंपेटिटर बड़ा आ गया हो, उसके प्रोडक्ट्स बिकने लग गए हो, तो भी एग्जिट करना जरूरी है। और भी स्टडीज करनी पड़ेंगी, बट मैं आपको सिर्फ स्टेप वाइज अपने पैटर्न समझा रहा हूं। नेक्स्ट पैटर्न, डीमर्जर इन अ साइजेबल कंपनी। तो इसका सब लोग को जवाब देना है चैट बॉक्स में। टेल मी इफ देयर इज अ बिग कंपनी, all of you know, right, that FIIs, DIIs and mutual funds can buy only those companies which have a market cap beyond a certain limit, like they cannot buy small companies. वो बड़ी कंपनी ही खरीद सकते हैं, FII, DII, म्यूचुअल फंड, करेक्ट? लॉजिकली भी मेक सेंस, बिकॉज उनके पास इतने पैसे छोटे कंपनी कैसे खरीदेंगे? पता है ना सबको? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज, so please answer. All of us know, right? FIIs, DIIs, mutual funds have a certain market cap limit below which they cannot buy. Now what happens in this kind of situation is कि case study 5, Strides and Solana, इसमें क्या होता है? Strides is a big company,
which is there in portfolios of FIIs, DIIs, म्यूचुअल फंड्स, करेक्ट. अब अचानक से क्या होता है, इस कंपनी में एक डीमर्जर अनाउंस होता है. तो डीमर्जर होते समय क्या होता है कि अब स्ट्राइड्स से सोलारा भी निकल रहा है. तो अब स्ट्राइड्स और सोलारा के दो कंपनी के शेयर आपको मिलते हैं, है ना, यस और नो. जब डीमर्जर होता है दो मिलते हैं. एज अ रिटेल इन्वेस्टर ठीक है, लेकिन अब FII सोलारा रख नहीं सकता, DII रख नहीं सकता, म्यूचुअल फंड रख नहीं सकते. ये लोग म्यूचुअल फंड ये सब तो नहीं रख सकते ना, बिकॉज मार्केट कैप के नीचे का है, छोटी कंपनी है, उनको तो इमीडिएटली बेचना पड़ेगा. मतलब भले कंपनी अच्छी हो नहीं हो, रेट मिले नहीं मिले, भाव जो भी हो, उनको बेचना पड़ेगा सिर्फ वो रूल के कारण, राइट. मजा देखो, सोलारा लिस्ट हुआ अराउंड 300. आप देखो सेलिंग प्रेशर कैसा था, लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट, एंड ये डेली चार्ट है तो दिन के हिसाब से है ये. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 दिन में सोलारा 300 रुपया का 120-30 रुपए पे आ गया, राइट. ये क्या हुआ सबको समझ में आ गया. अब कौन बेच रहा था उसके बाद, और आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेलिंग ओवर होने वाला है, थोड़ा सा वॉल्यूम देखना पड़ेगा. देखो यहाँ वॉल्यूम नहीं थे, फिर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मतलब कि अब शायद खत्म होने वाला है. साथ में सोलारा पढ़ के भी रखना पड़ेगा. कंपनी अगर बेकार हुई तो फंस जाओगे. कंपनी पढ़ के रखना पड़ेगा, पोटेंशियल क्या है, फेयर वैल्यू क्या होना चाहिए, बट उस पर अपने आज नहीं जा रहे हैं, तो अपने ये पैटर्न समझ रहे हैं. तो सोलारा अच्छी कंपनी थी. अभी आप देखो विद इन अ मंथ, जुलाई मिड से अगस्त मिड में ये 120 का माल 400 रुपया बिक गया. फिर बाइंग प्रेशर से उल्टा. समझ में आया ये पैटर्न कैसे प्ले आउट होता है. अभी अगर ये पता ही नहीं किसी को कि ऐसा पैटर्न भी होता है, तो वो इसको प्ले कैसे करेगा. एंड आप समझिए ये बात कि द पैटर्न्स विल कीप ऑन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. आज इस कंपनी में हो रहा है, कल दूसरे कंपनी में होगा, परसों तीसरे कंपनी में होगा, लेकिन कपड़े बदलेंगे, चीज तो वही है, राइट. कैसा लग रहा है आप लोग को, इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है जानने में ये सब. सुपर्ब, बढ़िया. तो बहुत ज्यादा ही टाइम ले रहा हूँ, बट ये लास्ट पैटर्न है जो मैंने लिया है. और भी पैटर्न है जो लिया ही नहीं पीपीटी में टाइम के लिए, नहीं तो शायद आप लोगों को सोने ही नहीं देता. Yeah, carry on. Everyone is So loving this this. is the last pattern of today, which is legacy companies witnessing induction of new generation. So you can relate this pattern to the previous pattern that we studied, ये वाला एक्विजिशन टेक ओवर टाइप ही है. कैसे है, लेगेसी कंपनी जिसमें नया जनरेशन आ जाता है, कहने का मतलब ये है कि पुरानी कंपनी है और बहुत साल से चल रही है, कंपनी अच्छी है, लेगेसी कंपनी है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो कंपनी एफिशिएंटली मैनेज नहीं हो रही है कोई कारण से. अचानक से नया जनरेशन आता है, जो प्रमोटर है उसका बेटा आता है, एंड प्रोबेबली ही हैज स्टडीड वेल, MBA किया है, सब कुछ किया है, या नहीं भी हो सकता है वैसा, बट कहीं पे काम किया है, एक्सपीरियंस लिया है, और उसके बाद आता है कंपनी, या आयशा मोटर इज अ रियली गुड एग्जांपल ऑफ दिस. उसके बाद वो कंपनी लेता है अपने अंडर, एंड उस पैटर्न को कैसे स्टडी करेंगे अपने. एवर रेडी इंडस्ट्री, एवरीबडी नोज. बैटरी में तो यार एवर रेडी के आगे कुछ नाम ही नहीं होता, हर जगह एवर रेडी रहता है, राइट. nobody has bigger distribution than ever ready, everybody will agree, सही ना. और इतने साल से, 10 साल पहले भी तो एवर रेडी था. आपके रिमोट्स में क्या डाला हुआ है, करेक्ट. ड्यूरासेल ये सब भूल जाओ, इंडिया ड्यूरासेल पे नहीं चलता है, इतना महंगा बहुत कम जन लेते हैं. तो अभी आप देखो एवर रेडी का परफॉर्मेंस क्या था, प्रॉफिट ही नहीं कर रहा था एवर रेडी 2013 तक. इतनी बड़ी कंपनी, हर दुकान में माल बिक रहा है, और इसका कुछ
लॉस ही चल रहा है, प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव, सोच सकते हैं आप सोच सकते हो? आपने कभी सोचे थे या खोल के देखे थे एवर रेडी लॉस कर रहा है? बिलीव होता है आपको एवर रेडी लॉस कर सकता है? तो अगेन हुआ क्या, अपने नजर पे कब आएगा आप देखो, अपने नजर पे कब आएगा ये, जब ये नया हाई मारेगा, उसके पहले तो नहीं होगा। करेक्ट, अपने नजर पे तो तभी आता है अगर, और नया हाई कब मारा, टाइमलाइंस पे ध्यान देना, नवंबर 2013 में नया हाई मारा। अभी आप यहाँ पे देखो, जब नया हाई मारा आपने इसका जोबा कॉर्प में देखा डायरेक्टर कौन है, या एनुअल रिपोर्ट में भी देख सकते हैं, तो आपने देखा कि अमृतांशु खैतान ज्वाइन किया, सबको गूगल किया तो उनके बारे में पता चला कि कब ज्वाइन किया, अगस्त 11। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, अपने हैं 2013 अक्टूबर में, अगस्त 11 में इसने ज्वाइन किया। अपने इसके बारे में देखे तो देखे ओके एमबीए किया है लंदन बिजनेस स्कूल से, ठीक है चलो, कुछ कॉन्फिडेंस तो देता है एटलीस्ट समथिंग कि ठीक है चलो। अब अपने अक्टूबर 2013 में है, तो अपने रिजल्ट्स देखते हैं जाके स्क्रीनर पे, इस साल का रिजल्ट देखो, जो अक्टूबर 2013 वाला साल था, मतलब कि ये ईयरली रिजल्ट है, तो अक्टूबर मतलब तो मार्च 13 खत्म हो गया था, मार्च 14 चालू हो गया था, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि ये कंपनी जो नेगेटिव थी वो प्रॉफिट्स में आ गई, और इसका सेल्स ग्रोथ भी इतने टाइम बाद आया, 4 साल में दिखा कोई सेल्स ग्रोथ नहीं, प्रॉफिट कुछ दिख रहा था नहीं, अचानक से आया ना 167% प्रॉफिट ग्रोथ, 11% सेल्स ग्रोथ, मार्जिन भागा ना 8% के आसपास आ गया, 6% 3% से। यस और नो, यस और नो। तो इस कंफर्मेशन के बाद ही लेना है। अभी आप समझो ही ज्वाइंड इन 2011, इफ यू वुड हैव बॉट इन 2011, 90 रुपया का उसके बाद 10-20 रुपया शायद आ गया, तो खाली ये खुश होना नहीं है कि ये लंदन से पढ़ के आया, ये किया वो किया ले लो। अरे बिजनेसेस को ठीक करना इतना इजी थोड़ी है, घर पेंट करने में, इंटीरियर होने में 1 साल लग जाता है, राइट और रॉन्ग, तो धंधा भी ठीक करने में टाइम लगेगा, तो उसको पहले होने दो ठीक, कूदो मत। और ये जब नीचे जा रहा था ना, तब भी बहुत बार बीच बीच में ऊपर गया, तो मतलब कूदते मत रहो, बट नया हाई मारा नहीं मारा, ऐसा भी हो सकता था नया हाई मार के गिर गया, तो रिस्क मैनेजमेंट चाहिए वहां पे। लेकिन परफॉर्मेंस के पहले क्यों लेना, अगर परफॉर्मेंस देख के यहाँ पे घुसते तो आप ही देख लो कैसे भागा है स्टॉक। तो कौन सा तरीका सही है, एक प्रोसेस है ना हर स्टॉक का, कि अपने रैंडमली ले रहे हैं, आज ये कल वो, परसों इस तरीके से, परसों उस तरीके से, ऐसे वैसे जैसे तैसे, प्रोसेस बिना बनेगा पैसा। 52 वीक हाई, 6 मंथ हाई देखना है ये, और बाकी पैटर्न्स को भी ध्यान में रखना है, स्क्रीनर पे जाना है, उसके बाद इन डेप्थ फंडामेंटल स्टडी करनी है, उसके बाद ही स्टॉक लेना है, तब भी काम खत्म नहीं होता है। उसके बाद यू नीड टू हैव प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, एंड otherwise in such kind of periods you will have a 50-60% drawdown, and you also need to have proper execution। अभी इजी लग रहा है, जब असली में स्टॉक 20 का 40 हो चुका होगा, खरीदना किसी के लिए भी इजी नहीं होता है। सो yeah, so that is basically it from my side. Thank you guys. You can reach out to me on the mentorship program at gmail.com if you want to discuss anything or have any doubts or are interested in joining me. So we can definitely get in touch, and we keep on doing one webinar every month in our program. I keep on sharing documents as well. I also share what I buy and sell. So if you are interested, you can reach out to me. This is not an initiative to sell, but just an information in case you are interested and you like the work that I do. So Yash, that is it from my side. Yeah. तो अभी बताओ भाई क्या करना है? But so, of course, first of all, I would like to thank you for such a wonderful, wonderful session.
what you have given. भैया आप स्क्रीन शेयर आई थिंक आप स्टॉप कर सकते हैं प्लीज. आई रिक्वेस्ट कि आप अपना ईमेल आईडी एक बार चैट बॉक्स में लिख दो बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग. Okay, just a second. Everyone in the meeting. Okay. You can note, So I've just put it there. And other email ID is, if you guys find it difficult, it's malanisoumya@gmail.com as well. Yeah. Share screen बंद करना है ना? बंद कर दिया ना? Share screen. हाँ. Perfect. Yeah. Thank you, everyone. I'm so Okay. happy with your reviews. I would love to hear your reviews. If you liked it, you can put it on Twitter also. You can mail me. You can message me also. I'll be more than happy and would make me feel happy as well to see your reviews on social media or personally. You can message me if you're not comfortable or mail me as well. Thank you. Will help me improve So also. yes, so of course we love to have love the feedbacks and we love the blessings for what you all have given. So just we'll take 2 or 3 questions because we have got plethora of questions on Facebook on the on our chat box, but of course we cannot answer all of them. But I'll try to take 2 or 3 questions which have been prominently there. So Sure. I think the first question which I can see is on Facebook is. Uh, should we follow all the patterns at one go or should we follow one by one? Like how do we go about it? So we need to follow all the patterns at one go because see, these are not patterns individually. These are basically set of patterns. किसी कंपनी में कुछ आएगा, किसी कंपनी में कुछ और आएगा. So ये सारे ही ध्यान रखने पड़ेंगे माइंड में. And you don't spot these patterns very fast. These are rare to come, and you just need to keep on digging and trying to find out. Also, there will be a lot of multi-baggers that happen without these patterns as well. So we need to keep an eye for them as well and understand their businesses as well when stocks hit new highs. Yeah. Okay, perfect. So you should follow all the patterns and of course keep learning in the market. Absolutely. There are so many patterns. These are not patterns that we have read in any book. These are personally, as I told you, history में आप जाइए, आप देखिए, and personally we have kind of figured these patterns out. And तो उसको फिर सोच के हमने लिस्ट बनाया. इसके अलावा भी normal company hitting new high, showing good growth, you can just go, you can study, and if you understand its business, you can go for it as well. Okay, great. So I'm getting a lot of questions on the PPT, of course, but of course, I think we are not sharing the PPT right now, but we'll be sharing the general summary of all the patterns which Soumya has discussed. So we'll be sharing a photo. Don't worry, everyone. You'll get the knowledge. We'll get all the patterns description so that you all can benefit from it. So I don't think so. Like we're already late, but thank you so much again, Soumya Bhaiya, for giving such an insightful webinar. We have got great feedbacks. We have got a great audience, and I would love to have you again, of course, in the future coming dates because like it has been a great learning for me in terms of fundamentals. And a lot of things that you shared, like risk management and 52-week highs, of course, we also follow that in technicals, and I shared it also in earlier webinars. So thank you so much again for sharing your knowledge, for sharing your insights with us. And just a quick closing remark from you, and then we'll end it. Yeah, so I'll just start the video for a second. Yeah. Yeah. So the most important thing, guys, remains that एक प्रोसेस से काम करें, मार्केट को समझ के काम करें, हिस्ट्री को उसका ड्यू रिस्पेक्ट दिया जाए एंड रैंडमली काम नहीं करें. मतलब एक प्रोसेस को पकड़े, काम करें. सोशल मीडिया ये सब पे देख के इधर उधर ट्रेड नहीं मारे. फोकस ऑन योर प्रोसेस, फोकस ऑन लर्निंग. आपको फायदा होगा, टाइम लगेगा, लेकिन आप ये बात समझिए कि ये जो भी आप सीखेंगे इट विल बी देयर विथ यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. एंड ऐसे अनसर्टन टाइम्स में भी स्टॉक मार्केट खुला है, तो मार्केट पे एफर्ट देंगे तो मार्केट भी आपको रिवॉर्ड देगा. जस्ट लाइक आप स्कूल में थे, आप नहीं पढ़ोगे तो आप फेल ही होंगे. तो सीए, सीएस, डॉक्टर सब बनने में 4-5 साल लगता है. सिमिलरली मार्केट में भी इफ यू वांट टू डू वेल, यू नीड टू लर्न, स्टडी, फाइंड अ मेंटोर and do whatever it takes. Yeah.
Okay. So again, where it was quite comprehensive, of course, and we learned a lot. So thank you everyone who joined us today and gave your precious time to us. We keep our promise to keep sharing much knowledge. We'll have many more speakers like Soumya where will be sharing their knowledge, their insights, or their expertise and niche in their area. So we'll request you to keep giving your feedback, your blessings, and we promise you that we'll definitely deliver and we'll try to add value to your knowledge in terms of all the fields in stock markets. And I'll try to get as many good speakers and like Soumya Vyas who is sharing his wisdom, his experience, and everything at with us at free of cost. Okay, that is very important, and I hope you all learned a lot of things. You were able to add value. Thank you so much. Uh, so good night, everyone. Stay safe, stay at home, and see you all next week, next Sunday at 9 p.m. with another great speaker. Okay, thank you. Bye bye. Have a great week ahead. Signing off, Yash.